Good afternoon, students. This is my fourth video of this chapter, National Income Accounting of Macroeconomics of Class 12 CBSE Economics. And before this, I have already provided you three videos, and in the last part of previous video, I explained the various formulae of income method of national income accounting. Now in this video I am going to make you understand the various precautions of income method of national income accounting, and then I will take some numericals and will try to understand that how numericals based on income method of national income accounting are solved. So these are things which we are going to do in this video. So before I start making you understand the various precautions of income method, first of all I would like to uh, recall you the formulae which I explained, which have to be used by us also in solving the various numericals of income method. Means firstly we'll do the revision of various formulae of income method के जो different formulae हैं उनका revision करेंगे. तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था इनकम मेथड में नेशनल इनकम अकाउंट करने के लिए फर्स्टली इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स. Okay, and then statistical investigators collect the data of factor incomes earned in primary, secondary and tertiary sectors, and then all these factor incomes are added and we get NDPFC. Why we get NDPFC from this addition? Because the definition of NDPFC, which is also known as definition of NDPFC, which is also known as domestic income, is that it is the sum total of factor incomes earned within the domestic territory of a country during an accounting year. So what we do under this method? We collect the data regarding factor incomes earned from primary, secondary and tertiary sectors. And as we know that primary, secondary and tertiary sectors are located within domestic territory of our country. So if we are collecting the data from primary, secondary and tertiary sectors regarding factor incomes earned, actually we are getting the factor incomes earned within the domestic territory of a country. And if we are adding all these factor incomes earned from primary, secondary and tertiary sectors, means from domestic territory of a country during an accounting year, we get NDPFC. Okay. So first of all we find out NDPFC and then we convert this NDPFC into national income, which is known as NNPFC with the help of golden rule. So what is the formula which we use to find out NDPFC? I told you that to get NDPFC we have to add factor incomes earned within the domestic territory of a country, and factor incomes earned within the domestic territory of a country find out करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है COE, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. ये जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है NDPFC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ plus operating surplus plus mixed income. Compensation of employees, operating surplus and mixed income, these are the factor incomes earned within the domestic territory of a country. ये क्या होते हैं इसको भी फर्दर अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा. कि इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि फैक्टर इनकम्स आर rent, wage, interest, profit, royalty, pension after retirement, and now I'm saying that to get factor income we have to add COE, OS and mixed income in place of rent, wage, interest, profit, royalty and pension after retirement. Why so? Because these are the technical names of rent, wage, interest, profit, royalty and pension after retirement. जब इनकी ब्रेकिंग करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे इन फॉर्मूलों को, तो अपने आप हमको मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी. Means these are compensation of employees, operating surplus, mixed income. Actually these are the technical names of rent, wage, interest, profit, royalty etc., which are known as factor incomes. So actually these are the technical names of factor incomes. तो इन्हीं रूप में फॉर्मूला को डेवलप किया गया. बाद में इसको एक्सटेंड करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को, तो ये अपने आप इन ब्रेक हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी एंड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. एक बार NDPFC मिल जाता है तो फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नेशनल इनकम में. एज वी नो दैट नेशनल इनकम इक्वल्स टू NNPFC. तो NNPFC हमने ऑलरेडी क्या एस्टिमेट कर लिया यहाँ पे, NDPFC. अब NNPFC कैसे फाइंड आउट करेंगे? हेयर FC इज गिवन, सो FC इक्वल्स टू FC. देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट दिस. देन प्रोडक्ट, नो नीड टू कन्वर्ट दिस.
national equals to, here domestic is given, तो फॉर्मूला हमको पता है गोल्डन रूल से कि national equals to domestic plus NFIA and net equals to net, तो हो जाएगा national income equals to NDPFC plus NFIA. So this is exactly equal to what? This is equals to national NDPFC और इसी में ऐड कर देंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा नेशनल इनकम का फार्मूला. यही मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है. अभी जो फार्मूला मैंने एक्सप्लेन करके बताया वो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है. यू कैन सी दैट मेन फार्मूले ऑफ इनकम मेथड. नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. इसको किया तो ये किसके इक्वल हो गया? NDPFC के, और इसमें ऐड कर दिया NFIA, तो नेशनल इनकम हो गया. अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इक्वल्स टू वेजेज एंड सैलरीज प्लस पेमेंट्स इन काइंड्स प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर प्लस पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. ये चारों क्या होते हैं इसको समझना है तो प्रीवियस वीडियो यू कैन सी इन दैट वीडियो दीज टर्म्स हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल. बस आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स में ये टर्म्स आएंगे, इन चारों को जोड़ेंगे COE मिल जाएगा. ऑपरेटिंग सरप्लस इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम्स फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स ऑफ फर्म्स. फर्म्स की प्रॉपर्टीज और एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी पैसा, जो भी फैक्टर इनकम अर्न होता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी. फिर इसमें प्रॉफिट का भी एक फार्मूला होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या जिसे कॉर्पोरेट सेविंग्स बोलते हैं. और लास्ट में मिक्स्ड इनकम, फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. तो आप देख सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ब्रेक करा तो हमको क्या मिला? वेजेज एंड सैलरीज मिला. ऑपरेटिंग सरप्लस से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी हमको मिल गया. और मिक्स्ड इनकम इट इज़ अगेन द फैक्टर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक्चुअली दीज compensation of employees, operating surplus and mixed income, these are the technical names of rent, wage, interest, profit, royalty, pension after retirement etc. इनको ब्रेक करेंगे तो कहीं से हमको वेज एंड सैलरी मिल रहा है, कुछ कन्वर्ट हो जा रहा है इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. और मिक्स्ड इनकम इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ फैक्टर इनकम्स विच इज़ अर्नड बाई वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स. इस का क्या होता है इसको डिटेल में इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू विल हैव टू सी माय प्रीवियस वीडियो. नाउ विल सी द प्रिकॉशंस ऑफ दिस मेथड. इस मेथड के प्रिकॉशंस देखेंगे. इनकम मेथड जब भी यूज़ करते हैं तो कौन सी हमको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी सो दैट वी कैन गेट नेशनल इनकम करेक्टली. तो प्रीवियस मेथड जब मैं आपको पढ़ा रहा था वैल्यू एडेड मेथड या जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, उसकी प्रिकॉशंस थी रिगार्डिंग market values of what products should be included and market values of what product should not be included. वो प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यूज से रिलेटेड प्रिकॉशंस थी क्योंकि उस मेथड में नेशनल इनकम निकालने के लिए वी ऐड द मार्केट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये करते हैं तो GDP MP मिल जाता है, फिर गोल्डन रूल लगा के उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेते हैं. नाउ इस मेथड में नेशनल इनकम निकालने के लिए व्हाट वी आर एडिंग फैक्टर इनकम्स. तो इस मेथड की जो प्रिकॉशंस होगी दीज विल बी रिगार्डिंग व्हाट इनकम्स शुड बी इंक्लूडेड एंड व्हाट इनकम्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, तो पहली प्रिकॉशन ये है कि नॉन फैक्टर इनकम्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड. नॉन फैक्टर इनकम्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसफ़र इनकम्स. ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर है इसका जो फर्स्ट वीडियो है उस फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम. वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि नेशनल इनकम ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड, नॉन फैक्टर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड. नॉन फैक्टर इनकम्स यदि इंक्लूड कर देंगे तो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. नॉन फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं? ऐसी इनकम्स जो फैक्टर इनकम्स से हमको मिलती हैं लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशंस एक्सेट्रा. ऐसी सारी इनकम्स जो हमको फैक्टर इनकम से मिलती है उनको बोलते हैं नॉन फैक्टर इनकम्स एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. क्योंकि इनको इंक्लूड कर देंगे तो ऑलरेडी दीज we are earning these incomes, non-factor incomes from factor incomes, and factor incomes have already been included. It means these non-factor incomes have already included in national income as the part of factor income. तो इनको अलग से सेपरेटली भी इंक्लूड करेंगे तो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. कैसे होता है सारा चीज़ फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा गया है. मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, इनकम्स फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड. जो वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन या प्रोडक्ट मेथड की प्रिकॉशन थी वहाँ पे मैंने बताया था
इसी प्रिकॉशन को लेकिन थोड़े स्लाइटली डिफरेंट वे में वहाँ बताया गया था कि मार्केट वैल्यूज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे ये हो जाएगा इनकम्स फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगेन इफ दीज आर इंक्लूडेड दीज विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये कैसे आपको पता चलेगा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, इसको यदि आपको समझना हो तो प्रीवियस चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। No, not in that. In the previous video of this chapter only, if you go to the second part of that video when I was explaining the precautions regarding value added method, in that method in second precaution I have already explained that why second hand goods should not be included, because if second hand goods are included it will create the problem of double counting. How? If you want to understand you have to watch that थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। यदि उसको आप देखते हैं तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाई द इनकम्स फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, इनकम्स फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड बट द कमीशंस ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यदि मेरे पास कोई सेकेंड हैंड कमोडिटी है और उसको मैं बेचता हूँ, एक बाइक है सेकेंड हैंड बाइक है, उसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, नाउ आई एम सेलिंग दैट बाइक इन 35,000 रुपीज़, सो दिस 35,000 रुपीज़ शुड नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन ये बाइक बिकवाने के लिए यदि मैं कोई एजेंसी को यूज़ कर रहा हूँ, देर आर मेनी एजेंसीज, देर आर मेनी फर्म्स, मेनी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इसी में लगी हुई हैं। यदि आप कोई भी अपनी कमोडिटी जो सेकेंड हैंड है उसको बेचना चाहते हैं तो इस एजेंसी को आप कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपकी कमोडिटी का बायर आपको प्रोवाइड कराएगा। या कोई सेकेंड हैंड गुड आप परचेज़ करना चाहते हैं तो सेम एजेंसी को कांटेक्ट करेंगे, वो आपके लिए प्रोवाइड करेगा सेलर। तो जब आपको सेलर प्रोवाइड करेगा तो ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजेंसी इज़ प्रोवाइडिंग मीन्स सम सेलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड विच आई वांट टू परचेज। तो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कंपनी मुझसे कुछ कमीशन लेगी, दिस कमीशन विल बी इंक्लूडेड। या इफ़ आई वांट टू सेल एनी सेकेंड हैंड कमोडिटी, if I am contacting to that company which is engaged in providing sellers and purchaser of second hand goods, that company will provide me some buyer of my second hand good। तो उस बायर को मैं अपनी सेकेंड हैंड गुड बेच दूंगा, लेकिन उस कंपनी को मुझे कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने क्या दिया है, सर्विस दिया है। किस फॉर्म में? उसने मुझे मेरी कमोडिटी सेकेंड हैंड कमोडिटी का बायर प्रोवाइड किया है। तो ये कंपनी जो कमीशन ले रही है उस कमीशन को वो अर्न कर रही है बिकॉज कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग सम सर्विस एंड एनी इनकम विच इज़ अर्न, एनी अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय समवन व्हेन दैट वन प्रोड्यूसेस सम गुड्स और जनरेट सम सर्विसेज, सो दैट इनकम इज़ नोन एज फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे जो कमीशन हो गया है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये कमीशन अर्न हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज। कोई कंपनी सेकेंड हैंड गुड किस सेल करने में सेलर को हेल्प कर रही है या परचेज करने में परचेज़र को हेल्प कर रही है, और इस हेल्प ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके अगेंस्ट वो कुछ कमीशन हमसे ले रही है, सेलर से या बायर से। तो ये कमीशन कंपनी को तब मिल रहा है जब वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जब भी कोई भी इनकम हमको मिलती है, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी हमको मिलता है जब हम कोई सर्विस जनरेट करते हैं या कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं, तो फैक्टर इनकम बोला जाता है। ऑब्वियसली इट विल बी इंक्लूडेड। ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज भी आज के डेट में अवेलेबल हैं, जैसे OLX आपने सुना होगा। OLX इज़ एन ऑनलाइन कंपनी विच प्रोवाइड्स सेलर्स एंड बायर्स टू बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स को बेचने से जो भी इनकम अर्न होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगेन ये कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करा है प्रीवियस चैप्टर जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका जो मैंने वीडियो बनाया है, जिस वीडियो में मैंने बताया है आपको डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो कैसे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी इंटरमीडिएट गुड्स, यदि इसको देखना है तो आपको प्रीवियस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 आपको देखना होगा। और यदि आपको ये पता करना है कि हाउ सेकेंड हैंड गुड्स विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो इसी चैप्टर का प्रीवियस वीडियो आपको देखना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स
विच इज़ नोन एज कैपिटल गेन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड, और यदि कोई व्यक्ति है वो शेयर्स एंड बॉन्ड्स को सेल आउट करता है और उससे कुछ पैसा वो अर्न करता है, दिस अमाउंट ऑफ मनी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये एक नॉन फैक्टर इनकम हो गया। और ये जो अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ अर्न by the different individuals from the sale of shares and bonds, this income is known as capital gain। ये एक नॉन फैक्टर इनकम है, नॉन फैक्टर इनकम, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इनकम इस इंडिविजुअल को अर्न हो रही है, या जो भी शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर्स और बॉन्ड्स को बेच के जो पैसा कमा रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ इनकम वो अर्न कर रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ इनकम एक नॉन फैक्टर इनकम है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। सपोज़ मैंने एक शेयर परचेज करा अगर ₹100 में, ओके, एंड आफ्टर 1 मंथ इस शेयर का प्राइस हो गया ₹110, तो मैंने इसको सेल कर दिया। तो सेल करा तो मेरे पास कितना आ गया 110। कितने में ख़रीदा था 100 में, तो मैंने ख़रीदा था 100 में, बेचा 110 में, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया ₹10। ये ₹10 नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? बिकॉज ये ₹10 जो मैंने अर्न करा है, ये अर्न करते समय मैंने किसी भी गुड या किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन नहीं किया है। मतलब फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, द अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैव अर्न इन दिस केस विच इज़ ₹10, against this amount of money nothing good has been produced and nothing service has been generated. Neither any good has been produced nor any service has been generated. That is why this is a kind of non-factor income, because non-factor incomes are those incomes which are received by some individuals without producing goods and services. तो ₹10 मैंने अर्न किया विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड एंड सर्विस। केवल मैंने कम दाम पे शेयर को ख़रीदा और ज़्यादा प्राइस पे उसको बेच दिया, इससे मुझे प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को अर्न करते समय मैंने किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं किया है, किसी भी सर्विस को जनरेट नहीं किया है। दैट इज़ वाई दिस अमाउंट ऑफ मनी विल नॉट बी इंक्लूडेड, और इसी अमाउंट ऑफ मनी को कैपिटल गेन बोला जाता है। तो कभी एग्जाम में आता है कि वेदर कैपिटल गेन्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, तो आप बताएंगे कैपिटल गेन्स आर अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। These are not included in national income because these are non-factor incomes, because these incomes do not produce any good and these incomes do not produce any good and service. That is why these will not be included. Is this clear? But next precaution, brokerage on account of sale and purchase of shares and bonds should be included. ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं शेयर मार्केट में देयर आर मेनी शेयर ब्रोकर्स, और हम डायरेक्टली शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीद बेच नहीं सकते। इसके लिए हमको शेयर ब्रोकर बनना पड़ेगा। इफ़ वी आर कॉमन मैन, हम शेयर ब्रोकर नहीं हैं और शेयर और बॉन्ड हम खरीदना बेचना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमको किसी शेयर ब्रोकर को हायर करना पड़ेगा। अब वो हमारे बिहाफ में शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदेगा और बेचेगा। तो शेयर और बॉन्ड वो खरीदेगा बेचेगा हमारे बिहाफ में, तो इसके लिए हमको उसको देना पड़ेगा कमीशन। तो ये कमीशन को बोलते हैं ब्रोकरेज, जो विच इज़ पेड बाय दोज पीपल who sell and purchases shares and bonds with the help of share brokers. That commission is known as brokerage. तो ये कमीशन जो ब्रोकरेज हो गया, विच इज़ अ फैक्टर इनकम, ये एक फैक्टर इनकम हो गया क्योंकि शेयर ब्रोकर ने हमको एक सर्विस प्रोवाइड करी। वो हमारे बिहाफ में शेयर्स को खरीद रहा है और बेच रहा है, तो शेयर खरीदने और बेचने की सर्विस हमको प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए उसको ये ब्रोकरेज हम पे कर रहे हैं। तो ये ब्रोकरेज इंक्लूड होगा, ठीक है। और शेयर और बॉन्ड को खरीदने और बेच रहे हैं जो शेयर ब्रोकर्स, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, जिस भी इंडिविजुअल के बिहाफ में वो शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं, उस इंडिविजुअल को जो प्रॉफिट होगा इस खरीदने और बेचने से, दैट प्रॉफिट विल नॉट बी इंक्लूडेड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक शेयर ब्रोकर है, इसको मैंने हायर करा, ये मेरे लिए शेयर और बॉन्ड खरीदता और बेचता है, और इसके लिए कमीशन एक पर मंथ मुझसे लेता है वो ₹100। तो ये कमीशन हो गया ब्रोकरेज, इट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे लिए शेयर्स खरीद और बेच रहा है, ठीक है। और इसने कोई शेयर खरीदा सपोज़ ₹2000 में, ओके, तो मैंने अपने अकाउंट में जो मेरा डीमेट अकाउंट है उसमें 2000 में डालूंगा, 2000 यूज़ करके या इंडिविजुअल मेरे बिहाफ में एक शेयर परचेज कर दिया। सपोज़ 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ इसका प्राइस बढ़ के 2500 हो जाता है, तो ये मुझसे कांटेक्ट करेगा, कहेगा क्या इसको बेच दूँ? तो मैं बोलूँगा यस बेच दीजिए। तो ये बेचेगा, तो कितना अमाउंट ऑफ मनी मेरे अकाउंट में आ जाएगा? ₹2500।
तो 2000 में मेरे लिए ख़रीदा था इसने, 2500 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया 500। ये वाला प्रॉफिट जो कि होगा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये 500 रुपीज़ जब मैंने अर्न किया है तो इसको अर्न करते समय मैंने किसी भी गुड या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं किया है, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि नॉन फैक्टर इनकम हो जाएगा। लेकिन इस शेयर ब्रोकर को जो मैं ब्रोकरेज दूंगा, जो कमीशन दूंगा, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि वो कमीशन अर्न कर रहा है, बिकॉज दैट शेयर ब्रोकर इज प्रोवाइडिंग सम सर्विस टू मी। इज इज क्लियर? नेक्स्ट, विंडफॉल गेन्स। लाइक विंडफॉल गेन्स क्या होता है? जो इनकम्स अनसर्टेन होती हैं, लाइक इनकम्स फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि अगेन दीज जो भी लॉटरी से हम इनकम अर्न करते हैं, हॉर्स रेस से जो भी हम पैसा कमाते हैं, दैट इज़ अ नॉन फैक्टर इनकम, क्योंकि विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड एंड सर्विस वी आर अर्निंग amount of money. That is why it will be a kind of non-factor income and non-factor incomes are not included. तो विंडफॉल गेन का मतलब जो भी हम स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी से पैसा कमाते हैं या लॉटरी से कमाते हैं या हॉर्स रेस से कमाते हैं, ये जो भी पैसा हम कमाते हैं, इसको कमाते समय कोई भी सर्विस हम जनरेट नहीं करते हैं, कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, केवल हम लॉटरी लगा के, हॉर्स रेस करके या सट्टेबाजी करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, नो गुड, no service, neither any good nor any service. That is why these amounts of money will be known as non-factor incomes, और इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट करेंगी। इन्हीं को बोलते हैं विंडफॉल गेन्स, विल नॉट बी इंक्लूडेड। लास्ट वाला प्रिकॉशन वेरी सिंपल, इनकम्स फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो भी पैसा हम इलीगल एक्टिविटीज़ से कमाते हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, मतलब स्मगलिंग करके या थेफ्ट करके, चोरी करके यदि कोई पैसा हम कमा रहे हैं तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इनकम मेथड। इनकम मेथड पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल दिए गए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है इनकम मेथड का कि फाइंड आउट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नीचे कुछ डेटा दिए गए हैं और नेशनल इनकम हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इनकम मेथड। नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ डायरेक्टली दिया गया है या इसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेज एंड सैलरीज प्लस पेमेंट इन काइंड्स प्लस पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स होते हैं रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। मिक्स्ड इनकम इज़ गिवन डायरेक्टली। फिर प्रॉफिट के भी कंपोनेंट्स होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड। देखते हैं क्या दिया गया, किस फॉर्म में दिया गया। फर्स्टली विल सी दैट वेदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन और इट्स कंपोनेंट्स हैव बीन गिवन। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का पहला कंपोनेंट नहीं दिया गया है, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मिक्स्ड इनकम दिया गया है, दिस मिक्स्ड इनकम इज़ गिवन डायरेक्टली। ये थर्ड आइटम इसमें मिक्स्ड इनकम आइटम नंबर 1 यहाँ पे देखिए लिखा है, मिक्स्ड इनकम आइटम नंबर 1 दिया गया है। ओल्ड एज पेंशन, ये तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होती है बिकॉज इट इज़ अ नॉन फैक्टर इनकम। डिविडेंड्स दिए गए हैं, डिविडेंड्स प्रॉफिट के पार्ट है। ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेज एंड सैलरी, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का जो पहला कंपोनेंट होता है वेजेज एंड सैलरी इज़ गिवन, तो पहला कंपोनेंट दिया गया है वेजेज एंड सैलरी। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का होता है कंपोनेंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम या कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉय, ये दिया गया है। या इन कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इस नाम से भी दिया जा सकता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ और इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, से किसी भी नाम से दिया जा सकता है। बस आपको ये देखना है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो सेकेंड आइटम भी हमारे काम का है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला वेजेज एंड सैलरी, दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, तो इट इज़ ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट होता है पेमेंट इन काइंड्स, दैट इज़ नॉट गिवन, एंड लास्ट वन इज़ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन। तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लेंगे, तो फर्स्ट कौन सा आइटम नंबर है, आइटम नंबर 5 एंड नेक्स्ट आइटम नंबर 7।
तो आइटम नंबर 5 प्लस आइटम नंबर 7 जोड़ा तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल गया। ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ गिवन डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया गया है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ओके, सपोज ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया गया है, किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस 200 दे दिया गया है और रेंट इज़ गिवन एज 20 एंड इंटरेस्ट इज़ गिवन एज 30। तो अब अलग से रेंट और इंटरेस्ट को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस हैज़ बीन गिवन एज 200। तो ये 200 ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए ऑलरेडी किया जा चुका है। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी इनको जोड़ के ही तो ऑपरेटिंग सरप्लस 200 निकाला गया हो गया। तो फिर अलग से कंपोनेंट्स को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में यदि प्रॉफिट और इंटरेस्ट 20 और 30 दिए गए हैं तो इनको तो ऑलरेडी 200 में निकाला गया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ गिवन डायरेक्टली, तब फार्मूला हमको लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इसके कंपोनेंट्स चाहे दिए गए हैं चाहे नहीं दिए गए हों, उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग सरप्लस यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है तो प्रॉफिट को अलग से जोड़ने की ज़रूरत थोड़े नहीं। इन ऑपरेटिंग सरप्लस प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड rent. So all these four things have already been included in operating surplus. So if profit is given separately, there is no need to add this separately because it has already been included in operating surplus. So operating surplus is item number 4, इसको कर लिया। And net factor income from abroad is item number 8। सबको जोड़ा, यहाँ पे आइटम नंबर 500, आइटम नंबर 750 एक साथ जोड़ दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस 900, मिक्स्ड इनकम 200 एंड NFIA -10 सबको जोड़ा, आ गया 1640 करोड़ रुपीज़ नेशनल इनकम। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे पूछा गया है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको निकालना है तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमको निकालने के लिए ऐसा फार्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास जो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, दैट फार्मूला इज़, या तो नेशनल इनकम वाला फार्मूला लिख लीजिए, नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA। इज इज क्लियर? तो यदि ये दिया गया हो, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये 4 आइटम्स हैव बीन गिवन, ऑपरेटिंग सरप्लस वी कैन ईजिली फाइंड आउट। लेकिन इसका यदि इंस्पेक्शन करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया तो NFIA इज़ नॉट गिवन। तो NFIA नहीं दिया गया है, इसीलिए ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। तो एक ऐसा फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी हो और NFIA की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो फार्मूला होता है NDPFC। अभी इस वाले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, NDPFC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इज इज़ क्लियर? अब हमको चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइड चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अब हो जाएगा NDPFC और ये साइड चेंज होकर इधर जाएगा तो माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ माइनस मिक्स्ड इनकम। ये करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट NDPFC। NDPFC हमको चाहिए, देखिए दिया गया है कि नहीं, तो NDPFC नहीं दिया गया है बल्कि दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब हमको क्या दिया गया है, वी हैव बीन गिवन GDP MP और दिस इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट वी नीड NDPFC, ये हमको चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, FC इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये हमको चाहिए। फिर प्रोडक्ट डोमेस्टिक एंड नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ये करेंगे तो हमको NDPFC मिल जाएगा। तो देखिए NDPFC का फार्मूला क्या दिया गया है, GDP MP माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये गोल्डन रूल लगा के यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया गया है इन दिस solution which has been given। NDPFC has been estimated with the help of GDP MP equals to
consumption of fixed capital, which is depreciation minus indirect tax plus subsidy. So GDP MP is given as 600 minus consumption of fixed capital is 100 minus indirect tax is given as 200 and plus 50 is subsidies. इसको जोड़ा 350 करोड़ रुपीज़ आ गया NDPFC. अब ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला अभी मैंने डेवलप करके बताया था. ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू हो जाएगा NDPFC माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ माइनस मिक्स्ड इनकम. वैल्यू पुट किया NDPFC 350 minus compensation of employees is given as 200 minus mixed income is not given तो उसको ज़ीरो मान लेंगे. तो ये हो जाएगा 150 करोड़ रुपीज़. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स्ड इनकम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ एज्यूम टू बी ज़ीरो. दिया नहीं गया इसीलिए इसको हम मिक्स्ड इनकम को एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा. एंड नेक्स्ट, फाइंड आउट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूज़ करके नेशनल इनकम फाइंड आउट करिए. तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इनकम मेथड या वैल्यू एडेड मेथड. उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि किस मेथड के रिगार्डिंग आइटम्स दिए गए हैं. कई बार क्वेश्चन में मेथड मेंशन रहता है, मेनी टाइम्स मेथड इज़ नॉट गिवन. तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस आइटम्स गिवन इन क्वेश्चन दैट व्हिच मेथड विल पॉसिबल टू बी यूज. तो इस केस में क्या दिया गया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, डिविडेंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, चेंज इन स्टॉक प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो ये सारे जितने भी आइटम्स इसमें दिए गए हैं उनको देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा मेथड लगाना हमारे लिए प्रिफरेबल होगा या हमारे लिए सही होगा. तो इससे पता चल रहा है कि इनकम मेथड लगाना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइटम्स हैव बीन गिवन ऑफ इनकम मेथड. क्योंकि इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज गिवन डायरेक्टली 6000, आइटम नंबर 2. नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस. तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट. तो इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से आइटम्स दिए गए हैं, वेदर इट हैज़ बिन गिवन डायरेक्टली और इट्स कंपोनेंट्स हैव बिन गिवन. यदि डायरेक्टली दिए गए हैं तो कंपोनेंट्स की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, वो वैल्यू पुट कर देंगे. बट कंपनसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस इज़ नॉट गिवन. तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं. इसका एक कंपोनेंट रेंट दिया गया है. नेक्स्ट कंपोनेंट गिवन इज़ प्रॉफिट एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ गिवन इज़ इंटरेस्ट. तो क्या क्या दिया गया है, रेंट, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 7 प्रॉफिट एंड आइटम नंबर 10 इंटरेस्ट. इनको जोड़ लिया 400 प्लस 800 प्लस 500 1700 हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस. मिक्स्ड इनकम नॉट गिवन, मान लेंगे कि ज़ीरो है. NFIA इज़ 80, सारी वैल्यूज़ पुट कर दिया. 6000 प्लस 1700 प्लस 80 आ गया 7780. So this is the answer of this question and this is all about income method. Next video में I will explain the steps of expenditure method, various formula of expenditure method, precautions and numericals of expenditure method. So this is all about this video. Thank you.